The rule to make big money is not to bet big money. Never let your ego take over. Now is the time for me to not follow any rules. And that, my friends, is the beginning of the road to failure. You know, ये जो intensity high होती है आपकी, वो intensity high होती, profit high नहीं होता. Remember, focus is the name of the game. When you eliminate your stock list, you eliminate your... Hey guys, welcome to today's video. आज हम बात करेंगे important rules speculation के बारे में. I'm going to be discussing 9 rules for speculation और मैं sure हूँ ये वीडियो देखने के बाद it's going to change every way in which you trade and approach the stock markets. सबसे पहली बात, stock market की जब बात आती है तब टाइमिंग बहुत ही important होता है. ट्रेंड्स जो होती है वो स्टॉक मार्केट में रोज नहीं आती है. 4 से 5 बड़ी ट्रेंड्स आती है एवरी स्टॉक में एवरी ईयर और आप ये नहीं चाहते कि आप चॉपी और ट्रेंडलेस मार्केट में फंस जाए जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है एंड ऑल यू आर डूइंग इज इरोडिंग टाइम एंड लूजिंग योर मनी. आइडेंटिफाई दोज 4 or 5 टाइम्स जहाँ प्राइस चेंज हो रहा है स्टॉक में एंड दैट विल गिव एन ऑप्टिमम ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर योरसेल्फ. रूल नंबर 2, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए. रिमेंबर, फोकस इज द नेम ऑफ द गेम. When you eliminate your stock list, you eliminate your distraction. आप ही बताइए कौन ज़्यादा पैसे बनाता है, कोई जनरल प्रैक्टिशनर या स्पेशलिस्ट? The more you specialize and focus on the smaller number of stocks, smaller universe, आप ये जान सकते हैं उन stocks को क्या move करता है and more importantly, what does not move those stocks. So try to focus, especially in this time of so much distraction, massive distraction. Specialization is the key. So the rule is focus on limited universe of stocks. Rule number 3, बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा bet करने की ज़रूरत नहीं है. When you talk about do not do this, research बताता है 95% of people lose money in stock market. तो research on study के हिसाब से ऐसा क्या है जो ये losers कर रहे हैं जो winners लोग से different है? And the answer is the losers in the stock market, they try to bet big money on their trades without any risk management. और winners जो है वो consistently risk management follow करके पैसा बनाते हैं. So this proves कि बड़ा पैसा बनाने के लिए you don't need to trade big money, you don't need to risk big money. Follow your risk management जो आपके percentage के हिसाब से है. There are people who have won championships by consistently trading smaller amounts but right risk management. Remember, आप यहाँ पैसा बनाने के लिए आए हैं, not to prove anyone anything. The rule to make big money is not to bet big money. Bet consistent amounts of money, small भी हो सकता है लेकिन with the right risk management. Rule number 4, thrill जो है जीवन में उसे किल करनी है. हम सबको थ्रिल पसंद है, डिज्नीलैंड, एसएल वर्ल्ड जाना सबको अच्छा लगता है. You know that's your love for thrill. लेकिन अगर आप ये थ्रिल एंजॉय करने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, that's not the right thing to do. जाना कहीं और कहीं और amusement park में जाना will be way more cheaper than you than to play the stock market just for the thrill factor. Markets में only those traders and investors पैसा कमाते हैं जो risk averse है. They are scared of risk, they are scared of losing money, they consider the risk factor before trading. If you are one of them, you can be a successful person, not someone who comes just to get that high, that thrill. So do me a favor, follow rule number 4 and kill the thrill in trading and investing. Rule number 5 is बहुत बार सुना होगा लेकिन ये सच है कि patience का काम है. ये एड्रेनालिन जो रश मिलता है थ्रिल से, वो कैसे मिलता है, वो हाई कैसे मिलती है? सबसे पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो या नंबर 2 आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ट्रेड करते हो, way higher than whatever you wanted to have your capacity at. ये जो intensity high होती है आपकी, वो intensity high होती, profit high नहीं होता. Remember, we do not want intensity. All we want is consistent money. All we want is to be patient, have more of patience, be selective and focus only on those stocks that give you money. Focus only on trading at those times जहाँ पे आपको high probability trading हो सकती है. जानते हैं losers लोग क्या करते हैं? अपने सारे हथियार, सारा पैसा, सारा इमोशंस, दे यूज ऑल ऑफ इट एंड व्हेन द टाइम कम्स टू शूट तो एक्चुअली उनके गन्स एम्प्टी होते हैं. सो लेट अस नॉट बी वन ऑफ दोज पीपल. लेट अस सेव all of these resources for the right time when we have to take action. So rule number 5 again is to be patient and be selective. Very important. Next is अपनी सिस्टम को फॉलो करें.
पीपल इतना टाइम और पैसा स्पेंड करते हैं टू अराइव एट द राइट ट्रेडिंग सिस्टम, समथिंग दैट सूट्स देम, एंड देयर इज नथिंग बैड विद दैट, इवन आई डू दैट, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन दे अराइव एट दैट परफेक्ट सिस्टम, एक दो ट्रेड ले लिए, एक आध 2 महीने तक ट्रेड लिए शायद, एंड देन व्हाट हैपेंस, they start to tinker with that system. They try to make, in their endeavor to make it better, they spoil the whole system. अभी आप ही बताइए, आप ऐसा कोई रूल सेट कर रहे हैं जो आप नहीं फॉलो करने वाले हैं, वाई वेस्ट टाइम इन सेटिंग दोज सिस्टम्स एंड रूल्स व्हेन, जब आप जानते हैं कि आप फॉलो नहीं करेंगे। जब स्पेकुलेशन की बात करते हैं, जो नॉर्मल एडेज है जो बोलता है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, वो स्पेकुलेशन में नहीं चलता है। व्हाई वी हैव द रूल्स इन द गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज बिकॉज रूल्स हमें अपने आप से बचाते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो फुल ऑफ इमोशंस एंड ट्रिगर्ड बिहेवियर, कभी कभी पता नहीं चलता है कि व्हेन द टाइम कम्स टू टेक एक्शन हम क्या डिसीजन लेंगे। दैट इज व्हाई वी हैव रूल्स एंड सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड आवर अकाउंट फ्रॉम आवर ओन इमोशंस, ताकि जब वो डिसीजन मेकिंग की घड़ी आए तब हम डिसीजंस इमोशंस पे ना लें, बट वी टेक देम बेस्ड ऑन द रूल्स एंड सिस्टम्स। रास्ते पे तो जाके रूल्स होते हैं, सपोज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, व्हाई डू वी हैव दोज रूल्स? वो रूल्स सोच समझ के बनाए गए हैं ताकि व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल यू डोंट सिंपली एनी हार्म टू समवन। तो स्पेकुलेशन के जो रूल्स हैं उन्हें भी हमें फॉलो करना है। और काफ़ी लोग आके मुझे बोलते हैं ना, एकदम मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई सेड यू डोंट हैव टू लाइक इट, दवाई भी किसी को अच्छी नहीं लगती, बट यू टेक इट, राइट? देयर आर टाइम्स एंड सिस्टम्स विल गिव यू बैक टू बैक ड्रॉ डाउन, बट यू स्टिल हैव टू फॉलो देम। देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल नॉट लाइक यूजिंग द स्टॉप लॉस, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग इट, इट्स अबाउट डूइंग इट, राइट? और आप ये खुद डिस्कवर करेंगे, बार बार कंसिस्टेंटली एक्शन लेने से ही पैसा बनता है। सो रूल नंबर 6, फॉलो योर सिस्टम, जो बैक टेस्ट की गई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गाइस, स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कितने लेसन हम कसिनो से सीखते हैं। कसिनो की सपोज बात कर ले तो कसिनो नेवर लूजेस मनी। आपने देखे कैसे ऑपरेट करता है? कसिनो कभी बिलीव पे ऑपरेट नहीं करता है। दे ऑपरेट प्योरली ऑन द सिस्टम्स एंड दे ऑपरेट ऑन द लॉज दैट दे हैव प्लान। इसीलिए आपने देखा होगा casinos will never stop, they're open for 24 hours for every guest that comes inside to play. The same is with stock market. Time is your friend here. जितना ज़्यादा टाइम आप सिस्टम के अंदर गुजारते हो, सिस्टम फॉलो जितना टाइम ज़्यादा कर रहे हो, उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज ट्रेडिंग सिस्टम्स जो होते हैं ना, उनका एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज होता है गेम में। एक बार आपने अच्छे से बैक टेस्ट करके सिस्टम डिसाइड कर लिया, and then you let it run for a long period of time. That is when you increase your odds to make money. The answer takes you to the next one is do not quit. When you follow the system, कभी quit नहीं करें. Let the system do its job. Even after, back-to-back drawdowns, losses, just go and start your trading journal. Where am I going wrong? Am I messing with the risk management? Am I messing with my emotions? Or I'm just letting the system do its job? बार बार सिस्टम बदलने से आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान खराब हो जाता है। सो डू नॉट क्विट एट ऑल। अगर कोई सिस्टम में आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंटली रिटर्न्स नहीं बन रहे, गो बैक एंड चेंज योर सिस्टम इन अ वे टू फिक्स दैट लूप होल। डू नॉट कीप जंपिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एंड द वर्स्ट सिनेरियो इज डू नॉट क्विट हियर। रूल नंबर 8 मेरा फेवरेट है, जो कहता है कि राइड योर विनर्स नॉट योर लूजर्स। इतने सारे एक्सपीरियंस ऑफ माइन इन द स्टॉक मार्केट, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल है दैट यू कैन फॉलो इन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। पता है लूजर्स क्या करते हैं? व्हेन दे लूज मनी दे ट्राई टू इंक्रीज देयर पोजीशन साइज, एंड व्हेन दे आर विनिंग दे ट्राई टू डिक्रीज देयर पोजीशन साइज। और विनर्स ऑपोजिट करते हैं, जब पॉजिटिव स्ट्रीक से गुजरते होते हैं दे ट्राई टू इंक्रीज देयर पोजीशन साइज, पॉजिटिव पिरामिडिंग करते हैं। साइकोलॉजिकली देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। अपना ह्यूमन माइंड जो होता है वो फियर से बहुत ही इम्पैक्ट होता है। आई मीन वी फियर द फियर इटसेल्फ। फियर हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू आर विनिंग यू गेट फियरफुल कि शायद आप अपनी विंस खो न दे, एंड दैट इज़ वाई यू ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स अर्ली। बट व्हेन यू आर लूजिंग होप सेट्स इन। आपको लगता है कि यार मेरा पैसा, लाइक व्हेन यू लूजिंग मनी यू फील लाइक लेट मी होल्ड ऑन टू द पोजीशन, मुझे पैसा नहीं खोना है। धीरे धीरे मेरा भाव तो आ ही जाएगा, और इस सोच की वजह से मे बी यू कीप ऑन होल्डिंग योर लूजर्स, एंड दैट इज़ हाउ जो आपके छोटे लॉसेस होते हैं बड़े लॉसेस हो जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ 95% कौन में चले जाते हैं पीपल हु लूज मनी इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।
द ट्रूथ इज माई फ्रेंड्स कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। स्ट्रिंग ऑफ विनिंग ट्रेड्स को जमा करने से आपको सक्सेस मिलती है स्टॉक मार्केट में, राइट? एंड दैट इज वाई वंस यू एंटर इन टू अ विनिंग स्ट्रीक, द आइडिया इज टू नॉट कैप योर विनिंग्स, जस्ट लेट योर विनर्स राइड। फेलियर्स क्या है? और failures is a string of losses of failure. So let's not accumulate this string of losses. Let's focus on the string of winners. And when you enter in a positive streak, remember, you'll have to ride your profits and cut your losses short. The last rule, rule number 9. Again, I love this rule, बहुत ही important है, जो बोलता है कि never let your ego take over. बहुत जन के साथ ऐसा होता है, जैसे ही पैसे बनाना शुरू किया, थोड़े सक्सेसफुल हो गए, you know what they do? They let their basics go off the window. उन्हें लगता है कि अब मुझे बेसिक्स समझने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है. They feel I have arrived. Now is the time for me to take chances. Now is the time for me to not follow any rules. And that, my friends, is the beginning of the road to failure. You know, ego का तो काम ही आपको बताना कि hey, आई एम इन चार्ज, और आपको लगने लगेगा ये स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत है, मैं बाद में लगा लूँगा, ज़रूरत लगेगी तो लगा लूँगा. And then when the losses come, they come in big, sometimes so big that they have the capacity, God forbid, to wipe people out. आप क्या करेंगे, my friends? The thing is, once you're on the winning streak and you feel that you're really able to make it here, do not change. Don't go after one system. एक के बाद एक नए सिस्टम के पीछे मत जाइए, शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे मत जाइए. Keep continuing to follow what you have been doing. Same system, same logic. Do not tinker with anything. Remember one thing, my friend. On your own, आपने कुछ नहीं किया है. आपने पैसा नहीं बनाया, आपके सिस्टम ने पैसा बनाया है. It is a system that is responsible for your success. जितनी ज़्यादा ईगो को इन्वॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आप रूल्स ऑफ द गेम से दूर चले जाओगे और उतना ही जल्दी आपका फेलियर पास आएगा. रिमेंबर दैट. सो रूल नंबर 9 बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. डू नॉट लेट योर ईगो टेक ओवर. सो गाइज, ये सारे रूल्स ऑफ स्पेकुलेशन को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. रूल नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड दैट टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रूल नंबर 2 इज टू ट्रेड विथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स. रूल नंबर 3 इज टू नो दैट बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा बेट करने की ज़रूरत नहीं है. रूल नंबर 4 इज टू रियलाइज दैट थ्रिल kills. We need to kill the thrill when we speculate in stock market. Rule number 5 is to be patient and be selective in your stocks. Rule number 6, keep following your system. Rule number 7, do not quit. Rule number 8 is to ride your winners but not your losers. Cut your losers short and let your winners go. And rule number 9, सबसे बड़ा important, do not let the ego take over ever. I hope guys इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को पॉजिटिवली फ़ायदा हो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, मैं हमेशा बताती हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में 80% हाथ आपकी साइकोलॉजी का होता है, सिर्फ 20% सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज का होता है. एंड दिस इज़ ट्रू ऑफ कोर्स विद एवरी अदर बिजनेस, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली नथिंग कुड बी ट्रूअर दैन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. तो ये ऑलवेज ध्यान रखिए. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, हम 4 सिंपल स्टेप्स और प्रोसेसेस की बात करते हैं, 4 सिंपल लेयर्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, जो हमारी बुक #CashTags में बताया गया है. By the way, the new version of the book is out, version 2 of #CashTags, जो recently release हुई है. और इस बार हमने ये book, thanks to request from you guys, we have released it in Hindi as well. तो भी #CashTag आ गई है in the newer version, not only in English but also in Hindi. अगर आप चाहते हैं अपनी कॉपी बुक कर सकते हैं, नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, book your copy and know how do you move from a novice to a pro trader by following these 4 simple pillars of trading. Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.